Hello everyone, this is Anand sir and welcome back to my online class. Now I present here the second part of the chapter number 5. Chapter number 5. This is the second part of this chapter. And the title of this chapter is Houses Around Us. Houses around us. This is the second part of this chapter because in the first part we have done the reading practice. And before we start the explanation of this chapter, first we will try to know about the contents of subtopic of this chapter. Uh, through this chapter, sorry, in this chapter, not through. In this chapter, we will learn about what? We will learn about the need of the living things in a house. Number two, about the quality of a neat and clean house. What is the quality? First point is about the need of living things. Okay. And second thing is about we will learn about in this chapter we will learn about the qualities of a neat and clean house. And the one more subtopic of this chapter is about the various types of houses found in India. So these three subtopics of this chapter. So let us start the chapter. First point, according to the first point or according to the first subtopics of this chapter. A. Why do we need a house? Already you have studied this question already in class 1 and 2 also. So this is not a new thing for all of you. Why do we need a house? Already we know that we need a house to live in. We need a house to live in because it shelters us. What I आपके बुक में shelter SHELTER ये वर्ड है ना. हाँ, तो शेल्टर का मतलब होता है बहुत सारा मीनिंग होता है. शेल्टर का मतलब बचाना भी होता है. शेल्टर का मतलब आश्रय भी होता है, आवास भी होता है, बहुत सारा चीज होता है. तो वी नीड अ हाउस टू लिव इन. हमें हाउस की जरूरत, घर की जरूरत रहने के लिए बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस, it gives us shelter. It gives us shelter from heat, cold, wind, rain and dust. ये सारी चीजों से हमें बचाता है. We need a house to live in because it gives us shelter from heat, cold, wind, rain and dust. ये सारी चीजों से हमें बचाता है, हमें आश्रय देता है. दूसरा चीज, ठीक है. अब आते हैं कि इसमें लिखा आवर हाउस इज प्लेस वेयर वी कैन लिव सेफली विद आवर फैमिली. हमारा हाउस एक ऐसा प्लेस है जहां पर हम अपने फैमिली के साथ सुरक्षित रहते हैं. कहाँ रहते हैं? घरों में रहते हैं, फैमिली मेंबर के साथ सुरक्षित रहते हैं. अ प्लेस वेयर वी रेस्ट, रिलैक्स एंड एंजॉय विद आवर फैमिली. हम लोग, आवर हाउस इज अ प्लेस वेयर वी रेस्ट, रिलैक्स एंड एंजॉय विद आवर फैमिली. जहां पर हम अपने फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, रिलैक्स रहते हैं, आराम करते हैं. ठीक है. मेनी फैमिली स्टे टुगेदर इन अ नेबरहुड. नेबरहुड में, पड़ोस में, एक अगर पड़ोस है तो पड़ोस में बहुत सारे फैमिली अपने साथ, फैमिली मेंबर के साथ रहते हैं. और ये सारे फैमिली मेंबर जो है क्या करते हैं? वी लिव एज वन बिग फैमिली इन ए नेबरहुड. और एक पड़ोस में हम लोग एक बड़े फैमिली की तरह रहते हैं. तो ये जो है आपके बुक में ये सारा स्टोरी ये समझाया गया है कि व्हाई डू वी नीड अ हाउस. नाउ कम टू द सेकंड subtopic of this chapter is what? About the qualities of. Second subtopic of this chapter is about the qualities. To do
ALITIES, about the quality of a neat, about a neat, about a good and clean house. Clean. This is the subtopic of your chapter. Okay. About the quality of a neat and clean house. Okay. So when we construct a house, mostly construction of a house depend on some factors. Construction of house. CONSTRUCTION, and construction. Construction of a house depend on following factors. अगर हमें घर बनाते हैं तो हमारा घर बनाना किसी चीज पे डिपेंड करता है। किस किस पे डिपेंड करता है? नंबर 1 इज क्लाइमेट। सेकंड इज मटेरियल्स अवेलेबल। MATERIALS, मटेरियल्स अवेलेबल। AVAILABLE, अवेलेबल। materials available. And number 3 budget, BUDGET, budget. Okay, BUD. So these three things, most of these three things depends, these three factors are depend our construction of a house. First, climate. Already all of you have studied about weather and climate in class 2. What is climate? Climate, when the weather remains the same for a long period of time, is called climate. जब एक ही प्रकार का वेदर काफी लंबे समय तक रहता है, that is called the climate. तो ये डिपेंड करता है कि how is the climate where we live, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, वहाँ पर क्या सालों भर बरसात होती है या बाढ़ आती है, या हम लोग तो अगर ज़्यादा ठंडा पड़ता है या ज़्यादा गर्मी पड़ता है, तो ये क्लाइमेट पर डिपेंड करता है कि वहाँ का जलवायु कैसा है, वहाँ का मौसम सालों भर कैसा रहता है, इस पर डिपेंड करता है। सेकेंड वन इज मटेरियल्स अवेलेबल। मटेरियल्स मीन्स होता है कि हम अगर जब हमको घर बनाना है तो हम जहाँ रहते हैं क्या वो जो चीज़ें हमको जहाँ मिलती है हम वही आधार पे घर बनाते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं और वहाँ पर हमको सीमेंट, छड़, मिट्टी, बालू, गिट्टी सब मिल जाए, तो जो जहाँ रहता है और जो मटेरियल जहाँ रिक्वायर्ड रहता है, रिक्वायरमेंट के आधार पे ही हम लोग उसका सिलेक्शन करते हैं। अलग अलग प्लेस पे अलग अलग मटेरियल्स यूज होता है घर बनाने के लिए। एंड द लास्ट वन इज बजट। बजट मीन्स व्हाट? बजट मीन्स मनी। हम लोगों का बजट कितना है घर बनाने, हम लोग क्योंकि हम लोग डिपेंड करता है हम लोग का घर बनाने के लिए कि हम लोगों के पास पैसे कितने हैं। बजट मीन्स पैसा, तो उसी आधार पर हम लोग घर तैयार करते हैं। तो these are the three factors mostly when we construct a house. These three factors are depend. Okay. After factors of the house, this is our responsibility. If we construct a house or if we have a house, how can we keep it? हम लोग इसको कैसे रखते हैं या रख सकते हैं? तो for this we have to maintain regularly. To maintenance of the house. We should keep clean, neat and clean. We should second one is cleanliness. सबसे बड़ा बात है साफ सफाई का। If we construct a house or if we have a house, अगर हम लोग के पास हाउस है, this is our responsibility. We should clean it.
इन द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, समय समय पर उसकी साफ सफाई करते रहनी चाहिए। ऐसे फॉर एग्जाम्पल कि वी शुड स्वीप एंड मॉप ऑन द फ्लोर रेगुलर और डेली और एवरीडे, प्रत्येक दिन घरों पे जो फर्श होता है उस पे झाड़ू पोछा होना चाहिए। इसके बाद वी शुड क्लीन आवर विंडोज एंड डोर्स रेगुलर, हम लोग का जो विंडो या दरवाजा है वो साफ सुथरा होना चाहिए। ओके, एंड वी शुड क्या बोल सकते हैं, वी शुड windows have wide netting, windows should have wide netting to stop flies and mosquitoes। घर में अगर मच्छर मक्खी को रोकने के लिए विंडोज या दरवाजे पे वाइड नेटिंग होना चाहिए। Our rooms, our houses should be airy, our houses and our houses should be ventilated, proper ventilated should be in our houses, हमारे हाउस में वेंटिलेशन होना चाहिए। from there means from ventilation fresh air and sunlight come in our house, यहाँ से फ्रेश हवा और सनलाइट हम लोग के घर के अंदर आ सके। तो ये चीज जो है, फिर वी शुड कीप आवर थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस, हमें अपने सारे सामानों को प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। So this is our responsibility, that how can we manage or how can we maintain our house, हम अपने हाउस को कैसे रखते हैं या रख सकते हैं। So these things, अगर हम हाउस को गंदा रखते हैं तो हम भी बीमार पड़ेंगे, because if our house is so dirty it means mosquito and fly spreads everywhere inside our house, सभी जगह कीड़े मकोड़े और मच्छर मक्खियां फैलेगी, which make us sick, जो हम लोगों को बीमार करेगी। We should use while everything, we should use disinfectants। disinfectant का मतलब क्या होता है, जो इन्फेक्शन को रोके, तो जो इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो हम लोग दवा यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द disinfectants। मच्छर मक्खियों को या किसी प्रकार के कीड़े मकोड़ों को जम्स को रोकने के लिए जो हम लोग दवा यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिसइंफेक्टेंट्स एंड अदर केमिकल्स टू कीप जर्म्स एंड पेस्ट अवे। बाकी दूसरे चीज भी केमिकल वगैरह भी यूज कर सकते हैं जो जर्म्स वगैरह को, कीटाणुओं को दूर रख सके। इसके बाद सेफ्टी क्या है, तो सेफ्टी प्लेस अ वाइटल रोल, वाइटल मींस इंपॉर्टेंट, सेफ्टी प्लेस अ वाइटल रोल in keeping the house safe from any kind of danger। सेफ्टी, अगर हम लोग घरों में रहते हैं तो क्या है, यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है सेफ्टी, सुरक्षा की। सेफ्टी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें कि हम लोगों को किसी भी प्रकार के खतरों से बचाता है। ओके, सो वी कैन कीप द हाउस सेफ बाय फॉलोइंग सम स्टेप्स। तो वी कैन कीप द हाउस सेफ, हम अपने हाउस को सुरक्षित रख सकते हैं। अपने हाउस को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, हाउस को कैसे सुरक्षित, अगर हाउस हमारा सुरक्षित है तो वी कैन आल्सो सेफ, हम लोग भी सुरक्षित रह सकते हैं। तो पहला क्या, तो वी शुड लॉक ऑल द डोर्स एंड विंडोज बिफोर गोइंग टू बेड। क्या कि बिफोर गोइंग टू बेड we should lock properly all doors and windows, सारे खिड़की दरवाजों को रात में सोने जाने से पहले बंद कर देना चाहिए। सेकेंडली, we should immediately repair to faulty electrical appliances। जितने भी घर में अगर कुछ इलेक्ट्रिक के सामान खराब है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह कुछ भी खराब है, तो तुरंत जो है उसे रिपेयर करवाना चाहिए, उसे ठीक करवाना चाहिए, उसे मरम्मत करवाना चाहिए। नंबर 3, we should turn off the gas burner before going to bed। अगर हम सोने जा रहे हैं, before going to bed we should turn off the gas burner। गैस बर्नर को रात में सोने जाने से पहले बंद कर देना चाहिए, because sometimes it may be dangerous, ये खतरनाक हो सकता है। So this is the safety some, so these all are some safety measures and this is the some things, the quality of a clean and neat and clean house। Cleanliness is the most important thing for house if you want to save from all types of
diseases. Okay, now the last subtopic. Last subtopic is types of houses. Types of houses. Already all of you have studied about types of houses in class 2 and class 1. Kacha house, pakka house, whatever, permanent house, temporary house. So the next subtopic is types of houses. Types of houses. We know that in our country, हमारे देश में different types of houses found in everywhere according to the structure of lands, climates, whatever. तो हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे भारत में अलग अलग प्रकार के हाउस पाए जाते हैं ना। तो आप लोग को इसमें कुछ डिफरेंट दिया गया है। इन ऑलरेडी इन क्लास 1 and 2 you have studied about कच्चा हाउस, पक्का हाउस, टेम्पररी हाउस, परमानेंट हाउस. In this house, in this chapter, we have we will study about some different house. First is Ikra house. I-K-R-A, Ikra house. अभी एक नया वर्ड आ रहा है, ये सब नया वर्ड आ रहा है इस बुक में। तो Ikra house क्या है? Ikra house है कि this type of house is usually found in state of Assam. Ikra house कहाँ पाया जाता है? तो found in Assam. House is found in Assam, and therefore this type of houses is also called the Assam house. This type of house, Ikra house, is also known as, also called it Assam type house. असम टाइप का हाउस ही बोला जाता है, क्योंकि क्यों बोलते हैं? क्योंकि एकरा हाउस कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। एंड दे आर मेड अप ऑफ, बनता कैसे? एकरा हाउस इज मेड अप ऑफ bamboo sticks and cement. Bamboo sticks, cements and mud. Ekra house is made up of bamboo sticks, cement and mud. ये एकरा हाउस जो है वो असम में पाया जाता है। किससे बनता है? तो बैम्बू स्टिक से, वो बड़े बड़े बांस से बनते हैं, सीमेंट से बनते हैं और मड से, ये तीनों यूज करके एकरा हाउस बनाया जाता है। टाइप ऑफ हाउस इज हाउस बोट और हाउस बोट। हाउस बोट, ये हाउस बोट जो है मोस्टली फाउंड इन आवर कंट्री, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ Kashmir and Kerala. House boat is found. House boats found in where? Found in Kashmir and Kerala. 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 House boats found in Kashmir and Kerala. These house boats, it is made up of what? Wooden plank and bamboo, palm leaves, etc. ये क्या चीज से बनता है? तो इट इज मेड अप ऑफ वुडन प्लैंक्स, बैम्बू एंड पाम लीफ, या बड़े बड़े लकड़ियों के पट्टे से बनता है। चौड़ा चौड़ा लकड़ी का पट्टा आता है, उसको बैम्बू से, और पाम लीफ का मतलब होता है ताड़। पाम का मतलब होता है ताड़ का पेड़। ताड़ का लीफ जो ताड़ का पत्ती होता है, वो सभी ये तीनों चीजों, चारों चीजों को मिलाकर के हाउस बोट बनाया जाता है। बिकॉज इट फ्लोट्स ऑन वाटर, इट फ्लोट्स ऑन वाटर। हाउस बोट नाम से ही समझ में आता है, हाउस घर और बोट। बोट मतलब क्या होता है? नाव। तो वह घर जो नाव पे बना हो, नाव के ऊपर हो, उसको हाउस बोट बोलते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन दिस टाइप ऑफ हाउसेस फ्लोट ऑन वाटर, फ्लोट्स ऑन वाटर, ये पानी पर तैरता है। ओके।
is last type of house is according to the book Toda huts. Toda huts. Huts means झोपड़ी. Toda huts means झोपड़ी. Toda house is found in where? Found in Tamil Nadu. यह हाउस तमिलनाडु में पाया जाता है. यूजुअली प्राय तमिलनाडु में इस टाइप के हाउस पाए जाते हैं. एंड दिस हाउस इज लुक लाइक अ हाफ बैरल. मतलब ड्रम देखे जिसमें लोग पानी भर के रखते हैं, तो उसका आधा जो अगर आधा कटा हुआ रहे तो वो बैरल मतलब क्या होता है कि कंटेनर. बैरल मतलब होता है कंटेनर जिसमें लोग लिक्विड स्टोर करके रखते हैं. तो टोडा हाउस लुक लाइक अ बैरल की तरह दिखता है. फाउंड इन तमिलनाडु एंड it is made up of what? Made up of bamboo cans से बनता है. एंड बैम्बू कैन से बनता है. एंड ग्रास इज यूज्ड टू कवर दिस रूम. ग्रास is used to cover this roof. ये बैम्बू के पोल से बैम्बू के से बनता है. फिर वो बैम्बू को जो है तैयार किया जाता है. इस तरह से होता है. ठीक है. और जो इसको दो तरह से देख सकते हैं. ठीक है. इस तरह से होता है हाफ बैरल की तरह. और इसमें जो है इसके छत को रूफ को वो घास से कवर किया जाता है. इसको. ओके. एंड इट लुक लाइक अ हाफ बैरल. हाफ बैरल मतलब बताया ना मैंने कि वो ड्रम होता है जिसमें लिक्विड स्टोर